Hello everyone, greetings of the day. Abhash here and I've come out with this today. English Literature Standard 12th book where I'll be covering and telling you the crux, the summary of the entire lesson. Uh, the last lesson is the first lesson and you'll be very much intrigued, invigorated and latificated by the beautiful, engrossing, riveting lesson, this last lesson, which is a very beautiful lesson, very enchanting one, framed by Alphonse Daudet. And this lesson takes us back to the halcyon days of our life, the beautiful days of our life. It gives us a lot of nostalgia and frisson of excitement and delight. So, without wasting a time, let us start with the lesson. So, it is the lesson has been set during the Franco-Prussian War, 1880-1871, and orders had been given that French won't be taught in the schools of Lorraine and Alsace. Okay, so orders had been given out, and this author M. Hamel, it describes about himself that on a day when I was preparing for the school, or rather I had been late for the school, मैं उस दिन अपने स्कूल के लिए लेट हो गया था और मुझे इस बात का बहुत डर था कि टीचर आज मुझे पनिश करेंगे. टीचर विल पनिश मी. द टीचर वॉज ऑल्सो about to ask questions on participles. The French teacher M. Hamel, he had said that he will be asking questions on participle in French. So he was already very shuddered and scared that he already had been late, and besides, if being asked to him, he won't be able to answer any question because he had never taken the interest in French. So he was already very scared और वो धीरे धीरे करके स्कूल की तरफ जाता है और उसके अंदर ये डर भी था, ये सवाल भी थे. On the way he sees that it is such a beautiful day, birds are chirping, the Prussian soldiers are drilling, such a beautiful day, and he had all the reasons to stay over there and stay invigorated and riveted in the beauty of the nature. It was so serene and beautiful. इतना खूबसूरत था सब कुछ और इतना खूबसूरत दिन, इतना ब्राइट डे, एक खूबसूरत दिन, पक्षी चहचहा रहे थे, प्रशियन सोल्जर्स अपना काम कर रहे थे, वहाँ पर ड्रिल कर रहे थे. तो ये सारी चीज़ों को देख करके वो बहुत मंत्रमुग्ध हो गया और उसके भीतर ये ख्याल आया कि क्यों ना आज मैं रुक जाऊँ और बंक मार लूँ, छुट्टी ले लूँ स्कूल से और ये इन चीज़ों को एंजॉय करूँ जो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं. उसके अंदर ये सवाल आया, बट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड ही कंटिन्यूड टूवर्ड्स द स्कूल. वो स्कूल की तरफ जाता है क्योंकि उसके अंदर एक डर था, उसको पता था कि सर गुस्सा हो जाएंगे, सर स्ट्रिक्ट हैं. ही नेवर लाइक द टीचर because of his strictness, and moreover he didn't like the subject because of its banal and trite nature. He considered it to be so boring and trivial. Okay, so जैसे वो रास्ते में जाते रहता है वो रियलाइज़ करता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत भीड़ है और लोग वहाँ बहुत सारे इकट्ठे हैं. तो उसे पता होता है कि सालों से जब भी कुछ बुरा खबर आता है, जब भी कुछ ऐसा न्यूज़ आता है जो नहीं आना चाहिए, तो वो हमेशा इसी बुलेटिन बोर्ड पर आता है. फॉर ईयर्स ऑल द बैड न्यूज़ हैड बीन पुट ऑन दिस बुलेटिन बोर्ड एंड ही वॉज वेरी मच अवेयर अबाउट दैट. सो ही गॉट स्केयर्ड एंड ही हैड दिस थॉट इन द माइंड दैट व्हाट मस्ट हैव हैपेंड राइट नाउ. अब ऐसा क्या हुआ होगा जो यहाँ पर इतनी भीड़ है और इतने सारे लोग हैं. इसके बाद वो अपने रास्ते की तरफ बढ़ता रहता है एंड ओवर देयर ही वॉज स्टॉप्ड बाई a blacksmith watcher, and he says to him ki don't run, okay, don't be in a haste, don't hurry, you can go slowly, you have plenty of time today, you have umpteen time. This black watcher says him. So he thinks ki he is being tormented and tantalized and he is being made fun of. उसका मजाक बनाया जा रहा है और ऐसे मजाक कर रहे हैं उसके साथ, तो उसको सीरियसली नहीं लेता है और वो अपने रास्ते पर रहता है. उसको पता है कि वो पहले से ही लेट है, तो उसके अंदर एक डर भी था कि जब स्कूल जाऊंगा और टीचर अगर गुस्सा हो गया और पनिश कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टीचर पहले से स्ट्रिक्ट तो थे ही, उसको पता था, और आज टीचर सवाल भी पूछने वाले थे, तो उस चीज़ को भी लेकर के एक डर अंदर से. उसके बाद क्या होता है कि वो देखता है स्कूल पहुंच करके कि ज़्यादातर जब मैं स्कूल पहुंचता था तो बहुत शोर शराबा, बच्चों का भागना दौड़ना, डेस्क खुलते थे, डेस्क की आवाज़ें और कई सारी चीज़ें, लेसन्स को ज़ोर ज़ोर से पढ़ाया जाता था. ऐसी कई सारी चीज़ें होती थी. बाकी के दिनों में there used to be a lot of fuss and commotion in the usual days.
of school. But today things were so different. It appeared as if it was a Sunday morning, and that made him a bit uh, flabbergasted. He was surprised to see this particular sight in the school, that things were so quiet and peaceful. It was so palpable and discernible that things were so quiet, peaceful, and everything was in order and organized. And he also mentions over here that he usually counted on the commotion to get on his desk without being seen. इसका मतलब क्या है कि वो इस शोर शराबे के बीच में, इस हल्ले की भी हल्ला और जो भागम भागी होता था उसके बीच में वो फ़ायदा उठा करके वो डेस्क पर जा कर के अपने बैठ जाता था और टीचर को ये पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि बहुत शांति थी और सब कुछ अपने ऑर्डर में था, सब कुछ वेल मेंटेन था। ऐसा लग रहा था कि एक संडे मॉर्निंग है। तो वो क्लास में जाता है, देखता है कि सर अपना क्लास ले रहे हैं और जा कर के अपने सीट पर बैठ जाता है। लेकिन एम हैमल डजंट गेट एंग्री, he doesn't chastise or scold him. Instead, he was very normal. He just says him कि अपने जगह पर बैठ जाओ, and we were about to start the lesson without you. Just go and take your seat, and you are late, but it is okay. So again he gets surprised कि एम हैमल ने उसे डांटा भी नहीं। अंदिना तो बहुत डांटते हैं, and he's so strict. तो दो तीन चीज़ें जो उसे अचंभित करती हैं, वो एक बुलेटिन बोर्ड पर इतना भीड़, दूसरा कि जो क्लास स्टार्ट होता है तो अंदिना इतना शोर शराबा हल्ला, there's a lot of mayhem and havoc in the school, there's a lot of pandemonium and bedlam. But today things were so normal and quiet. So what must have happened? Why things are so different? Why it is appearing to be a Sunday morning, as quiet as a Sunday morning? And then the third thing, M. Hamill is not being so strict. He's so casual and blasé today. He just said me to take the seat, and he is very nice with me. He's very gentle. And he again got besides, he realizes कि एम हैमल ने आज अपना ग्रीन कोट पहना हुआ है। ही इज़ इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। वो तभी ऐसे कोट पहनते हैं और तभी जो ब्लैक सिल्क कैप है, ये सारी चीज़ों को वो तभी पहनते हैं या तो जब प्राइज़ डे होता है या जब कोई इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं स्कूल में। और इसके अलावा पीछे के बेंचेस पर विलेज के लोग बैठे हुए हैं, जो गांव के लोग हैं, और भी लोग आए हैं और आज अटेंड कर रहे हैं एम हैमल की क्लासेस। अंदिना तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो एम हैमल के क्लासेस बहुत बोरिंग लगते हैं। फ्रेंच के क्लासेस कौन करना चाहे? इट इज़ सो बनाल एंड ट्राइड। बट टुडे सो मेनी पीपल हैव गैदर्ड एंड दे आर लिसनिंग टू एम हैमल वेरी पेशेंटली एज इफ इट इज़ हिज लास्ट लेसन। सो ही वॉज सरप्राइज्ड एंड फ्लमक्स्ड। और ये सब चीज़ को देख कर के वो सोच ही रहा होता है और वो सरप्राइज रह जाता है और अपने उसके मन में तरह तरह के सवाल और दुविधाएं। तभी एम हैमल कहते हैं और वो ये भी देखता है कि पीछे के बेंचेस पर विलेजर्स हैं और वो क्लासेस ले रहे हैं, सुन रहे हैं एम हैमल को, और सब अपने अपने तरीके से। एवरीवन लुक्ड सो सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. So he was just thinking about all these things, which was not so usual and convincing. And then and there, M. Hamill says in a very grave yet gentle tone that say, this is going to be my last lesson. You guys be attentive, because you won't be able to understand French after this. This is going to be the last day of mine. So you guys need to be very attentive in today's class. And this was like a thunder shock to him. You know, he clearly mentions over here that what a thunderclap these words were to me. Like I was so stunned and baffled and bewildered hearing this, that no more will M. Hamill teach us. And all those books which were appearing to be so heavy and like not relatable, I all of a sudden had developed a lot of sympathy for those books. और मुझे चाहिए था कि मैं और सीखूं और पढूं फ्रेंच को। अभी तो मैंने कुछ सीखा नहीं है, अभी तो मैंने कुछ समझा नहीं है, अभी तो मैंने कुछ जाना ही नहीं है। और एम हैमल भी चले जाएंगे, ये उनका लास्ट लेसन है। शायद आज के बाद मैं उन्हें कभी देख ही ना पाऊँ, उनसे लेसन्स ना ले पाऊँ।
तो ये सारी चीज़ें जब उसके दिमाग में एकाएक आती हैं और एम हैमल कहते हैं कि आपका आज लास्ट लेसन है, इसके बाद आप फ्रेंच नहीं सीख पाएंगे कभी, बिकॉज कल से नए टीचर आएंगे और लॉरेन और एल्सेस के स्कूल्स में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, मतलब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये सुन करके उसे बड़ा ही अजीब लगता है और वो सैड हो जाता है, गेट्स ऑल्सो सैड लाइक ऑल दी अदर पीपल ओवर देयर। एंड वो कहता है कि ये कितना बुरा हुआ मेरे साथ, और वो तब इन चीज़ों को फिगर आउट करने लगता है कि इसीलिए बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ थी और यही न्यूज़ आया होगा वहाँ पर कि एम हैमल कल जा रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहा है उनका और नए टीचर आने वाले हैं। उसने फिर ये रियलाइज़ किया कि इसीलिए एम हैमल आज अपने ग्रीन कोट में है और इस ब्लैक सिल्क कैप में आए हैं, और इसीलिए एम हैमल आज गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने डांटा नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मली और कामली बोलते हैं कि तुम जाकर के बैठो और अपने क्लासेस को अटेंड करो। इसीलिए विलेज के जो लोग हैं वो पीछे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं बड़े शांति से और बड़े आराम से, और वो एम हैमल को बड़े पेशेंटली सुन रहे हैं। So guys, this is the first part of this lesson, the last lesson. I'll be coming out with more parts and then we'll be completing the lesson. This lesson is going to be so riveting and engrossing for all of you. You guys can listen the story and you can get back to your halcyon days of life. Or even if you have not read the lesson altogether, this is going to be so captivating for you, I'm telling you. So if you really enjoy the lesson, don't forget to like the channel. और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं नेक्स्ट जितना पार्ट बचा वो मैं नेक्स्ट पार्ट्स में वीडियोज़ में लेकर के आता हूँ। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।